हेलो। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। ऑलरेडी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का लास्ट वीडियो आपने चेकआउट कर लिया है। उसमें मैंने बोला था कि कोई भी तीन वेक्टर्स को अगर कोप्लेनर वेक्टर्स दिखाना है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। उसको एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर ये ए बी सी are any three vectors and if the scalar triple product of these three vector is zero, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीनों वेक्टर्स का जीरो है, तब हम इन तीनों वेक्टर्स को बोलेंगे कि कोप्लेनर वेक्टर्स है। देन वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। अब ये देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कैसे आता है उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर अगर आप पहले देखे थे कि ये वेक्टर जो आर है और ये पॉइंट पी जो एक्स कॉमा वाई है, तब हम वेक्टर आर को एक्स आई प्लस वाई जे लिखते हैं, करेक्ट कि नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक के ये एक्स होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक के ये वाई होता है। यहाँ एक्स और वाई स्केलर है, आर स्केलर, करेक्ट। तो ये ट्राइंगल लॉ से आपने निकाल लिया कि आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। दूसरे सेंस में आप बोलेंगे कि ये जो आर है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई एंड जे है। जो आई और जे यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और आर वेक्टर को हमने एक्स आई प्लस वाई जे लिखा है। इसका ये मीनिंग हो गया कि जो आर वेक्टर है वो आई और जे का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अब लीनियर कॉम्बिनेशन है, लेकिन एज यू कैन सी दैट दिस थ्री वेक्टर्स, अगर मैं इसको आई ये डायरेक्शन में और जे इस डायरेक्शन में है, आर इस डायरेक्शन में है, और एज यू कैन सी दैट दिस थ्री वेक्टर्स आर lying on the same plane. So they are lying on the same plane, that means coplanar vectors. But as we can also see that this R can be expressed as the linear combination of I and J, and R, I, J are lying on the same plane. So we can conclude that the three vectors are said to be coplanar vectors when any one of them is a linear combination of remaining two, correct. As you can see that R is a linear combination of I and J, and how we can represent the linear combination of I and J like that, xi plus yj, where x and y are scalars, correct कि नहीं। For example, if I write a vector equal to 2b minus 3c, so here a vector is a linear combination of the vector b and c. If I can write that a vector equal to 2b plus 3c, a vector is a linear combination of b and c. That means that a, b, c are coplanar vectors. Fine. This is the basic. Now, if the scalar triple product of the three vectors a, b, c is coming to be 0, then we also say that the vectors are coplanar vectors. Now, how it is? Let's see. Say if 1, 2 and 3, and this is 0, 1 and 1, this is again 0, no, 1, this is 1 and 2. As you can see that this is the vector A, this is vector B, and this is vector C. Means these are the scalar component of vector A, vector B and vector C, right. And here as you can see, A vector is
nothing but the linear combination of the vector b and c. 1 plus 0 1, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3. So the vector A is a linear combination of vector B and vector C. Now we have to evaluate this determinant. If this determinant comes to be 0, then we will say that the vector A, vector B and vector C are coplanar vectors, because it is simply equal to A, B, C, that is scalar triple product. This is scalar triple product of A, B and C. So finally we will evaluate this, तो ये 1 हो जाएगा, 1 evaluate करें 2 minus 1 5, then minus 2 evaluate करेंगे तो 0 minus 1, ठीक, और फिर प्लस 3 यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 3, तो दिस इज 0 minus 1 and that is equal to, this is 2 minus 1 1, this is minus minus plus 2 and this is minus 3, that is 0. So as you can see that whenever a vector is a linear combination of the remaining two vectors, then the vectors are coplanar vectors. This is the basic condition, that they must lie on the same plane, that is any one of them can be represented as a linear combination of other two, or in other ways we can also say that the vectors A, B, C are coplanar if their scalar triple product is 0. Fine. So this is about the three vectors to be coplanar. Fine. Now suppose that we want to show that the 4 points whose position vectors are given are coplanar. अब अगर मैं coplanar points की बात करूं, coplanar points, अगर ये पॉइंट्स A है जिसका कि पोजीशन वेक्टर A है, ये पॉइंट B है जिसका पोजीशन वेक्टर B है, ये पॉइंट C है जिसका पोजीशन वेक्टर C है, और ये पॉइंट D है जिसका पोजीशन वेक्टर D है. So I am having the 4 points A, B, C, D with the position vector A, B, C and D, and we want to show that these points are coplanar. So the points will be coplanar when the vectors formed by these 4 points, that is we have to consider the 3 vectors are coplanar. तो इससे क्या करो, एक पॉइंट को फिक्स कर दो. सो यहाँ से मुझे एक वेक्टर बनाओ ए बी, एक वेक्टर बनाओ ए सी और एक वेक्टर बनाओ ए डी. सो नाउ वी आर हैविंग दी 3 वेक्टर्स, बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट all these 3 vectors are having the same initial points. तो किसी एक पॉइंट को आप फिक्स कर दो, करेक्ट है. तो एक पॉइंट को आपने फिक्स कर दिया, यहाँ मैंने ए को फिक्स किया है, फिक्स एनी वन पॉइंट, फिक्स एनी वन पॉइंट एंड मेक 3 वेक्टर्स, और फिर 3 वेक्टर्स मान लिए. और अब अगर मान लिया जाए कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी, ए सी और ए डी, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, देन पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स ए बी सी डी आर सेट टू बी कोप्लेनर वेक्टर्स. इनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है. अब ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर पॉइंट्स कराएंगे, तो इसका ये मतलब है कि 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर दिखाना है, तो किसी एक पॉइंट्स को आपको फिक्स कर देना है. जैसे मैंने ए को फिक्स कर दिया, और फिर उससे मेरे को 3 वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, और वो तीनों वेक्टर्स का फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. अगर वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है तब हम बोलेंगे 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर. ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते प्रॉब्लम से. चलिए इस फर्स्ट प्रॉब्लम्स को चेकआउट करते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है कि वेक्टर आई माइनस जे माइनस 6k, आई माइनस 3j प्लस 4k एंड 2i माइनस 5j प्लस 3k, दीज वेक्टर्स वी हैव टू प्रूव एज कोप्लेनर वेक्टर्स. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी, इजंट इट. तो अब हम क्या करते हैं, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं. फर्स्ट वेक्टर आपने क्या लिया है, ए लिया है,
तो इसके स्केलर कंपोनेंट आ जाएंगे 1, -1 और ये -6। बी सेकेंड वेक्टर ये लिया है, इसका स्केलर कंपोनेंट 1, -3 और 4। और फिर सी लिया है, इसके स्केलर कंपोनेंट 2, -5 एंड 3। अब इसको इवेल्युएट कर लेंगे, और इवेल्युएट करने के बाद में अगर ये 0 आ जाता है तब तो हम बोल लेंगे कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर है, नहीं तो कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं है। तो लेट्स सी, ये हो गया 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, तो ये हो गया -9, देन माइनस, फिर -20 मतलब +20, ये एक हो गया। फिर आएगा -1 मतलब +1, यहाँ माइनस है तो फिर से +1 हो जाएगा। यहाँ आते फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हटा दीजिए, तो 3 -8, और फिर लास्ट में आते -6 ये है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटा दीजिए तो -5, देन -6 मतलब +6। तो अब ये देखेंगे, ये तो हो जाएगा 11, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -6 और ये 0, ये 0 आ गया। देयरफॉर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, बस यही काम करना है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं मेंस लेवल पे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और इसको देखिए, इफ द वेक्टर्स -3i + 4j - 2k, i + 2k and i - pj are coplanar, then find value of p। ठीक है, तो क्या करो, इसको a वेक्टर, इसको b वेक्टर और इसको c वेक्टर। तो अब अगर ये कोप्लेनर है तो डेफिनेटली a b c ये 0 आया होगा, मतलब इसका डिटर्मिनेंट। तो अब डिटर्मिनेंट ऑलरेडी गिवन है कि ये 0 है। ठीक है, फाइन। तो अब यहाँ स्टार्ट करते, ये हो जाएगा -3, ये 4, ये -2। यहाँ आते हैं, यहाँ 1, जे नहीं है, जे नहीं है मतलब 0, और के का यहाँ 2। यहाँ आते हैं, ये 1, ये -p, के नहीं है तो 0। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इवेल्युएट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 = ये 0 यहाँ आ गया। ठीक, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स -0 -3, ये हो गया 0 और ये +2p। फिर आएगा -4, तो ये 0 -2, और फिर आएगा -2, तो ये -p, ओनली -p। तो अब देखो 0 = ये कितना हो गया, -6p, और ये हो गया +8। ठीक है, और ये +2p। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 0 = -4p + 8, मतलब p = 1/2। ये हो गया p = 1/2, आपका फाइनल आंसर। हाँ, p = 1/2 नहीं, p = 2। ठीक, p = 2। फाइन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, जिसमें 4 पॉइंट्स को मैं कंसीडर करता हूं। और ये आ गया दूसरी वेराइटी, जिसमें कि हमको 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर है कि नहीं है चेकआउट करना है। 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर चेक करने के लिए एक पॉइंट को फिक्स करके 3 वेक्टर्स बनाना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है? ठीक है, तो एक काम करते, ए को फिक्स कर देते हैं। तो अब मैं बना लेता हूँ वेक्टर ए बी वेक्टर। ए ये है और बी ये है। ए बी वेक्टर है, मतलब बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करो, तो -3 -2 -5i ये हो जाएगा। फिर 0 -1 तो +j, फिर 4 - 0 मतलब 4k, ये हो गया ए बी वेक्टर। अब आते हैं ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर कैसे बनेगा, ये ए सी में से ए को सब्ट्रैक्ट करो, -1 -2 -3i, -1, फिर +1 मतलब 0j, फिर 4 -0 मतलब 4k,
फिर आते एडी वेक्टर, एडी वेक्टर ए डी, डी में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, 0 -2, तो -2i, -5 माइनस ऑफ माइनस +1 दैट इज -4j, फिर 2 - 0 मतलब 2k। तो ये 3 वेक्टर्स मैंने फिक्स कर दिए, जिसमें से एक पॉइंट ए को फिक्स किया। आप कोई भी पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं, एक की जगह बी को फिक्स कर सकते हैं, सी को फिक्स कर सकते हैं, डी को फिक्स कर सकते हैं। कोई भी एक पॉइंट इनिशियल सेम रहना चाहिए 3 वेक्टर्स बनाने के लिए, ठीक। अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब आते हैं ए बी, ए सी और ए डी, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम चेकआउट करते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये पहले है, इसके -5, यहाँ है 1, यहाँ है 4, ये -3, ये 0, ये 4, फिर ये -2, ये -4 और ये 2। अब अगर इसकी वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, तब तो हम बोलेंगे कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर है, और चूंकि एक पॉइंट फिक्स है तो 4 पॉइंट्स कोप्लेनर हो जाएंगे। अगर 0 नहीं है तो वो पॉइंट्स कोप्लेनर नहीं होंगे। बस अब चेकआउट करना है, तो चेकआउट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो गया -5, ठीक। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो 0 -16 ये हो गया। फिर आएगा -1, इसको और इसको डिलीट किए तो -6 फिर +8 हो जाएगा, ठीक। और लास्ट में +4, ठीक। और इसको किए तो 12, ओनली 12 -0, तो ये तो हो जाएगा -80, और ये हो जाएगा +2, और ये हो जाएगा 48, मतलब -80 + 50 मतलब -30, जो 0 नहीं है। तो 0 नहीं है, 0 नहीं है तो ये वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है, इसलिए ये पॉइंट्स कोप्लेनर नहीं है। तो दीज आर नॉट कोप्लेनर्स, नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स। तो ये कैसे पॉइंट्स हो गए? नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं, जो 4 पॉइंट्स कोप्लेनर की कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा द पॉइंट्स 2i + 3j + k, ये पॉइंट है तो इसको आप पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए, ये पॉइंट सी मान लीजिए, और ये पॉइंट डी मान लीजिए, ठीक है। ये 6 है, ठीक, पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है। कोप्लेनर है मतलब एक पॉइंट को फिक्स करके मुझे 3 वेक्टर्स बनाना पड़ेगा, और वो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है कि ये 0 आने वाला है, और फिर लैम्बडा निकाल लेंगे। तो अपन एक काम करते हैं, ए को फिक्स कर देते हैं, ए बी वेक्टर निकाल दें, ए और ये बी। तो ये 1 -2i, तो ये -i, 2j - 3k तो -j, 3k - k मतलब +2k, ठीक। अब आते ए सी वेक्टर, ए और ये सी, सी में से एक को सब्ट्रैक्ट करो, 3i - 2i, तो ये i, 4j - 3j मतलब +j, -2k - k मतलब -3k। और अब आते ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर डी में से एक को सब्ट्रैक्ट करो, i - 2i मतलब -i, -लैम्बडा -3, तो प्लस -लैम्बडा -3j, ये होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, -लैम्बडा -3, और फिर 6 - k 1 मतलब +5k। और अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, मतलब ये गिवन है कि ए बी, ए सी और ए डी ये ऑलरेडी 0 है, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनका 0 है, क्योंकि ये पॉइंट्स ऑलरेडी कोप्लेनर गिवन है। तो हमको लैम्बडा निकालना है, ए सी -1 -1 2, ए बी हो गया, ए सी 1 1 -3, यहाँ आते -1, और यहाँ लिखना, यहाँ है -लैम्बडा -3, ये है
और यहाँ 5 और ये वैल्यू ऑलरेडी 0 है। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, लैम्बडा की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए अभी कैलकुलेट भी कर लेते टाइम में। तो ये हो गया -1 तो ये 5 और ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो प्लस किया तो अब कैलकुलेशन करना है। देखिए ये माइनस सबको मल्टीप्लाइड करेगा तो प्लस हो जाएगा, 3 लैम्बडा प्लस 9 और फिर माइनस, तो 3 लैम्बडा माइनस 9। ये कैलकुलेशन आपको करते आ जाना चाहिए, कैलकुलेशन में आप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये प्लस हो गया तो -3 लैम्बडा माइनस 9, यस ऑफ कोर्स। अब उसके बाद में आते हैं ये +1, ये -1 +1 होगा, इसको डिलीट कर दिया तो 5 और ये -3 फिर +2 किए तो ये देखिए ये माइनस लैम्बडा -3 और ये फिर माइनस माइनस +1, ये हो गया और इक्वल टू 0। तो अब आप इसको चेकआउट करते हैं तो ये तो हो जाएगा 5 - 9 कितना -4 +4, ठीक है, +4 और फिर +3 लैम्बडा, ये हो गया। ये 5 - 3 मतलब +2 और फिर आते ये हो गया -2 तो -4 और ये हो जाएगा -2 लैम्बडा इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ये लैम्बडा है और ये लैम्बडा है, तो ये तो हो गया लैम्बडा और ये 4 और ये कट गया, +2 इक्वल टू 0, तो लैम्बडा इक्वल टू -2। ये फाइनल आंसर आ गया आपको, लैम्बडा इक्वल टू -2, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स लैम्बडा इक्वल टू -2 लास्ट वाला स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली लैम्बडा इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है। तो अब एक लास्ट प्रॉब्लम आपको होमवर्क में देता हूँ और ये लेटेस्ट जेईई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन से, इसको आप आसानी से बना लेंगे कि ये वेक्टर्स पी आई प्लस जे प्लस के आई प्लस क्यू जे प्लस के एंड आई प्लस जे प्लस आर के आर कोप्लेनर, देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू, इसकी वैल्यू -2 आएगी। सिंस द वेक्टर्स आर कोप्लेनर है तो सीधा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ले लीजिए, वो डिटर्मिनेंट आपका पी क्यू आर के टर्म्स में आएगा, मतलब ये एक्सप्रेशन उसमें दिखेगा और फिर जो बच जाएगा वो आंसर आ जाएगा, दैट इज -2। So this is very simple dear students, this is all about the coplanar vectors and the coplanar points. I hope that आप सब लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, लाइक करिए, शेयर करिए।